Hello student. So today we will learn grammar part of Hindi. So your chapter over. So this is the grammar. What will come? I will teach you one by one. So this is the new for everyone. Upsarg. Upsarg means prefix. They are upsarg. Up, para, ao, ni, abhi, prati, ni, khush, ut. And in exam they will give these words and you have to make sentence or own sentence, meaningful sentence. So upsarg means prefix. The word they can add in front of the word and it will make new sensible senseful word. It's not like anything. So in exam it will come. And one more is prefix and this is and suffix. Suffix means pratyay. So you have to remove pratyay. In upsarg you have to add word and pratyay you have to remove. So suppose up is the upsarg. So you can make these three words: upkar, upchar, upvas. Next one para. Like this word will come, you have to write new word. You have to think. Suppose I am teaching in any textbook, any chapter portion, so you have to remember this word. But make sure that word should be senseful. So au also upsarg. So अवमानना, अवसर, अवज्ञा. नी निकम्मा, निडर, निहत्था. अभी अभिमान, अभिजात, अभिरुचि. प्रति प्रतिरोध, प्रतिकार, प्रतिदिन. So these are the words. These words will come. This is the example I am giving, but it's not sure they will come. But just for your knowledge, I am teaching you. अभिमान, अभिजात, अभिरुचि. प्रतिरोध, प्रतिकार, प्रतिदिन. निसंतान, निष्पाप, निर्विरोध. खुश मिजाज, खुश नसीब, खुशनुमा. उत्कृष्ट, उत्थान, उत्पत्ति. अधिक. सी सपोज अधि word will come, you have to just add अधिकार. अधिकार, अधिपति, अधिनायक. So these are the example. Any one you have to make. So this is how this words. This is called upsarg. Beginning it will come in exam, and this is called mool shabd. And you have to make mool means original word. Then you have to make new word. See bad में bad. If you add naam, badnaam. Up also serve. If you add shabd, it will call up shabd. उपराष्ट्रपति. उप राष्ट्रपति इकने उपराष्ट्रपति. ला परवाह, लापरवाह. न्यू वर्ड इज लापरवाह. बेईमान, बेईमान. These words will come in exam. I will show the question paper how it will come. And this word you have to think in your own and you have to make like this new word. असफल. बा कायदा, बकायदा. प्रकृति, प्रकृति. If you want you can write परिवार, सपरिवार. विकल, विकल.
उपसर्ग जोड़कर न्यू शब्द बनाइए। आक्रमण आक्रमण, अतिथि अतिथि, त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति, स्वराज्य स्वराज्य। So all this before plus they are upsarg. It will come in question form, and you have to think these words and you have to write, make new words. स्व प्लस राज्य स्वराज्य, स्व प्लस रूप स्वरूप, अ प्लस शिक्षित अशिक्षित, बद प्लस किस्मत बदकिस्मत. तो you can make any word, not like that. This way only. If you any easy word you have, you can add new words. बद किस्मत बदकिस्मत, निर्दोष निर्दोष, अनावश्यक अनावश्यक, नी प्लस वास निवास. तो you have to make like that. You have to create an equal like that to write. Otherwise only this one also you can write, no problem. नी प्लस वास निवास, परि प्लस कल्पना परिकल्पना, आजीवन आजीवन. You can mean आगमन also. वी प्लस नायक विनायक, स प्लस पूत सपूत, क प्लस पूत कपूत, अज्ञान अज्ञान. So there is so many examples are there. प्र प्लस शासन प्रशासन, संचालन संचालन, सु प्लस चरित्र सुचरित्र. You can write, this will come as कु also. कु प्लस चरित्र कुचरित्र, अ प्लस धर्म अधर्म, अप प्लस मान अपमान, प्र प्लस दूषण प्रदूषण. So this word will come in exam. These words, this word you have to think and you have to make like that. Got it the point? सु प्लस पुत्र सुपुत्र, अ प्लस ज्ञान अज्ञान, अ प्लस प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित. सपोज अप विल कम इन एग्जाम एज ए क्वेश्चन. निम्नलिखित दिए गए शब्दों से नए शब्द बनाए. तो डोंट बी कंफ्यूज. उपसर्ग means you have to add a new word and pratyay means you have to remove that origin word. उपसर्ग plus origin word equal to new word. and in प्रत्यय में क्या होता है, new word you have to remove original word. You have to find original word. So this is the difference in उपसर्ग and प्रत्यय. अ प्लस ज्ञान अज्ञान, अ प्लस प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, अप प्लस यश अपयश, अ प्लस विश्वास अविश्वास, वी प्लस देश विदेश, दु प्लस साहस दुस्साहस, आ प्लस जन्म आजन्म, प्र प्लस भाव प्रभाव. सो अ प्लस काल अकाल, आ प्लस दान आदान, नि प्लस अपराध निरपराध, सु प्लस कुमार सुकुमार, स्व प्लस तंत्र स्वतंत्र, प्र प्लस मुख प्रमुख, स्व प्लस तंत्र स्वतंत्र, प्र प्लस हार प्रहार, प्रति प्लस निधि प्रतिनिधि, भर प्लस पेट भरपेट, सु प्लस कन्या सुकन्या, वी प्लस राग वैराग्य, अप प्लस वाद अपवाद, उप प्लस संहार उपसंहार, उप प्लस सर्ग उपसर्ग, वी प्लस भिन्न विभिन्न, वी प्लस योग वियोग. आ प्लस गमन आगमन, प्र प्लस प्रवास, निर प्लस आदर निरादर, अ प्लस पवित्र अपवित्र, अ प्लस विश्वास अविश्वास, अ प्लस व्यवस्थित अव्यवस्थित, नि प्लस स्वार्थ निस्वार्थ,
अभि प्लस व्यक्ति अभिव्यक्ति, अ प्लस सत्य असत्य, निर प्लस भय निर्भय, अप प्लस कीर्ति अपकीर्ति, कु प्लस कर्म कुकर्म, बे प्लस हद बेहद, प्र प्लस क्रिया प्रक्रिया, प्ल प्लस का प्रकार, प्रति प्लस क्षण प्रतिक्षण, अति प्लस उत्तम अति उत्तम, सु प्लस नयन सुनयन, बद प्लस किस्मत बस किस्मत, अन प्लस इच्छा अनिच्छा, अन प्लस एक अनेक, अन आ प्लस साधारण असाधारण, प्रा प्लस यह प्रायः, अनु प्लस राग अनुराग, प्रति प्लस क्षण प्रतिक्षण, अति प्रतिरिक्त अतिरिक्त, स प्लस जीव सजीव, हम प्लस उम्र हम उम्र, सी दुर प्लस गुण दुर्गुण, प्ल प्लस काश प्रकाश, पुलस्कार उपकार, दूर प्लस जन दुर्जन, प्र प्लस पात प्रपात, ला प्लस वारिस लावारिस, हर प्लस रोज हर रोज, दर प्लस हकीकत दर हकीकत, प्रति प्लस क्षण प्रति क्षण, प्र प्लस दान प्रदान, उप प्लस निवेश उपनिवेश, नि प्लस देह, प्र प्लस भाव प्रभाव, प्र प्लस प्रकृति प्रकृति, प्रदर्शन प्रदर्शन, प्ल प्लस सार प्रसार, स्व प्लस देशी स्वदेशी, प्रति प्लस दिन प्रतिदिन, शुभ प्लस आरंभ शुभारंभ, ना प्लस पसंद नापसंद, परि प्लस श्रम परिश्रम, स प्लस रस रस, पर प्लस लोक परलोक, प्र प्लस वेश प्रवेश, अप प्लस मान अपमान, प्र प्लस बंध प्रबंध, अ प्लस नीति अनीति, बी प्लस चित्र चित अचित विचित्र, आ प्लस शंका आशंका, अन प्लस मोल अनमोल, वी प्लस भेद विभेद. So these are the words. So you have to remember, you have to keep good memory, and you have to remember other word also. What sometimes I am teaching in that chapter, you know any other words, you can make other words also. It's not you will make this, or you can make this. Is all the just example I given. The upsarg is finished. Upsarg means prefix. It will come in original word front. So you have to create new word. You have to create new word. Got it?